Hello friends, welcome back to the channel. This is Battlefield of Selection Kurukshetra. This video is specifically about the SSB interview questions. This video consists 119 questions. As you can see, you must be ready for the each and every question I will be talking about. This question has been made with the help of more than 15 candidates who has already been recommended from different SSB boards at different places in different entries like CDS, NDA, TES, AFCAT, CDS, OTA, etc. From with the help of them, I came to a conclusion of 119 SSB common questions, which are reportedly asked in different boards. Common means again and again, repeated. So I will be talking about all those questions today. So let's start. First, we should know the interview is a test of your story. A it will be of three sectional: PYQ based, behavioral, motivational. They will be talking about the fact you must be clear and consistent about your PYQ, means every detail from your PYQ you must be knowing about each and every point. You must not lag behind anywhere. Behavioral, they will be talking about your action which matters more than the claim. And your why, means why do you want to join defense, why do you want to be an officer. They will be checking about your motivation level. They will check that definitely, and this is the most important. Three sections. You must remember that you do not have to memorize the answers. Prepare your truth, means whenever you practice, do not memorize the answer that this answer has to be spoken there. You just prepare yourself, means what you are. They are fully trained people, interviewers, psychology officer, or the GTO officers. They are fully trained. They will catch you at every moment whenever you speak lie. Means maximum of time they will catch you if you are not that much smart to hide your lie. So first of all, they whenever they start, they will make you comfortable on for the interviewing room, and they will start with the personal questions, not the rapid fire. They will be asking about your journey, your how was your day, how was your stay, and uh, how you reached SSB center. If you are going Bhopal, how you reached Bhopal, means what was your journey, how was your journey, did you get any issue while traveling to SSB center. These are the questions they generally ask to make you comfortable. Then after they will start the rapid fire session from and I have listed the question as per this in different category. So just check it down. When they will ask about the name question, your own identity, they will ask what is your meaning of your name, not the name, what is the meaning of your name. हु गेव इट यू, तुमको ये नाम कहाँ से मिला, क्या मम्मी पापा में से कोई दिए, चाहे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और मामा, whoever has kept your name, you will have to speak. And they will ask about the famous personality from the name, whatever your name is. Like your name is Rahul, they will asking about the famous personality. You will be speaking Rahul Gandhi, Rahul Dravid, famous cricketer. In this way you have to speak. uh, how have you proved your name right, means राहुल का अगर कुछ मीनिंग होता होगा तो उससे, इफ़ इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मीनिंग, कुछ मुझे तो नहीं पता क्या मीनिंग होता है, लेकिन जो मीनिंग होता है अगर उससे तुम्हारा कैरेक्टर मैच कर रहा है
कैरेक्टरिस्टिक नेम है तो तुम उससे मैच करते हो या नहीं मैच करते हो, या उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर नेम। दीज आर द नेम क्वेश्चन। ये जनरली एनडीए वालों से पूछा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, छोटे होते हैं ना। बैटल फील्ड ऑफ सिलेक्शन कुरुक्षेत्र तुमको ऐसा ही कंटेंट ला के देगा, बहुत अच्छा। तो स्लो सब्सक्राइब अस, डू नॉट, sorry. Then when they will be asking you about the PYQ questions, they will check your background very means deeply. First of all, they will ask you to tell me about yourself, means you have to introduce yourself in the format which should look like that you are an officer. You do not have to make a mistake in at least first 15 minutes. कोई भी मिस्टेक नहीं करना है टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। मीन्स शुरू के 15 से 20 मिनट जो भी क्वेश्चन होंगे, यू विल बी नोइंग द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। दे विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन जिसके बारे में तुमको नहीं पता होगा, कि इसके उसके आंसर नहीं पता होगा। वो तुम्हारे बारे में ही पूछेंगे वो 15 से 20 मिनट रिलेटेड टू योर PYQ। उसके बाद PYQ के अलावा भी पूछ सकते हैं कि तुम PYQ में जो चीज़ नहीं लिखे हो, जैसे कि कोई बच्चा होता है जिसे कि 4-5 गेम खेलता है, दे ओनली मेंशन अबाउट द 2 गेम्स ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। तो उससे ये सब मौका होता है कि तुम बताओ कि मैं ये गेम भी खेलता हूँ, मैं इन जगहों पे भी पार्टिसिपेट किया हूँ जो कि PYQ में नहीं लिखा हूँ और लेस इम्पॉर्टेंट था। बट बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब पूछेंगे, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो उस समय भी तुमको बताना होगा तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, क्या करते हैं, क्या बिजनेस है, या फार्मर है तो क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है तो कैसे मैन क्या है नहीं है, तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनको तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ़ योर फादर इज़ अ फार्मर एंड you have shown your father's income very low, and they will definitely be asking you about the how your parents manage studies, how you manage your pocket money, means जो भी तुम्हारे पैसा मिलता है उसको तुम कैसे मैनेज करते हो। उसके बाद they will be asking you about the compare your maximum residence, present residence और SSB सेंटर के एरिया को, मतलब कि तुम कंपेयर करो कि क्या वहाँ अच्छा है क्या यहाँ अच्छा है। मीन्स कुछ बच्चे जैसे कि हॉस्टल में रहते हैं, चाहे कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो बाहर रहते हैं, तो वो तो उसका मैक्सिमम रेसिडेंस हो गया, और परमानेंट रेसिडेंस जो उसका होम टाउन है, और SSB सेंटर तो अधिक भोपाल, जालंधर, प्रयागराज एक्सेट्रा। तो तुम ये सारे जगहों को कंपेयर करके बताना होगा कि तुमको कहाँ का क्या अच्छा लगा, तुम अपने गांव में क्या अच्छा लगता है, तुमको जहाँ रहते हो वहाँ क्या अच्छा लगा, और तुम अभी SSB देने के लिए आए हो तो बाहर घूमे ही होगे 1-2 प्लेस। इंटरव्यू से पहले तुमको कम से कम 2-3 जगह जाना ही है घूमने के लिए, जो फेमस प्लेस हो वहाँ पे तुमको जाना है और घूमना है। तो वो इंटरव्यू में पूछेंगे तुम कहाँ कहाँ घूमे हो, यहाँ आए हो, तो इंट्रोवर्ट टाइप का तो नहीं है बंदा, ये सब जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो कमिंग टू द, और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि वाइल द जर्नी हाउ मैनी स्टेशन वेयर इन योर जर्नी, मीन्स तुम जहाँ से चढ़े और जहाँ उतरे, भोपाल या इलाहाबाद, तो उसके बीच में अगर ट्रेन से ट्रेवल किया हो तो कितना स्टेशन आया, ये सब यू मस्ट नो। ये सब पहले जाके अपने चेक कर लेना। जैसे कि तुम होम टाउन से ट्रेन से आए SSB सेंटर, तो तुमको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। They will be talking about hobbies and interest, what game do you play, कितने टाइप के गेम खेलते हो स्पोर्ट्स में। मीन्स जनरली मेंशन द आउटडोर, you should mention the outdoor game
for the physical fitness and other things. और जब तुमसे वो पूछा जाएगा कि PYQ के अलावा तुम कुछ बताओ, तो इंडोर गेम्स अगर चेस वगैरह तुम एक्सपर्ट हो, मीन्स अच्छा खेलते हो तो बताओ, नहीं तो मत मेंशन करो। क्योंकि अगर वो तुम जितना खुलोगे, जितना बताओगे, जैसे कि तुम फुटबॉल भी खेलते हो, हॉकी भी खेलते हो, वॉलीबॉल भी खेलते हो, बैडमिंटन भी खेलते हो, इसमें सारे में मान लो कि तुम्हारे पास अचीवमेंट्स हैं, नॉट टिल द स्टेट लेवल बट डिस्ट्रिक्ट लेवल या तो स्कूल लेवल का तुम्हारे पास अचीवमेंट है और जोनल लेवल का, तो दे विल बी आस्किंग अबाउट एवरी गेम, मीन्स दे विल आस्क अबाउट एवरी गेम टू यू, सो दैट कि तुम कम ही बताओ तो अच्छा है। जो तुम्हारा बेस्ट 2 गेम है उसके बारे में तुम बताओ और उसी के बारे में तुम डिस्कशन में रहो। तुम जितना एक्स्ट्रा बाहर बताओगे कि तुम ये चारों गेम खेलते हो, वो चारों से क्वेश्चन पूछेगा, तुमको चारों के बारे में प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फंसोगे, उनको लगेगा तुम झूठ बोल रहे हो। तुम किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हो, डिबेट, एक्सटेम्पर, क्विज, कल्चरल एक्सेट्रा जो भी होता है, इस सब में पार्टिसिपेट किए हो, क्या अचीवमेंट है तुम्हारा, नेशनल, स्टेट, चाहे जोनल लेवल, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किए हो, गेम हो या को करिकुलर एक्टिविटी हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो। उसके बाद तुमसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज योर डेली रूटीन एट योर स्कूल, व्हाट वाज योर डेली रूटीन एट योर होम, हाउ डू यू मैनेज योर हॉलीडे, मीन्स तुम हॉलीडे पे कैसे तुम क्या करते हो, पूरे दिन के बारे में तुम्हारा ये पूरा, इससे ही वो पता कर लेंगे कि तुम किस टाइप का लड़का हो और क्या तुम झूठ बोलने वाले हो क्या। क्योंकि अगर तुम अभी कुछ बोले, वो बात हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं अपने नोट पैड पे, तुम अभी कुछ बोले और बाद में वो अगर उनको डाउट हुआ और वो कुछ और पूछ दिए और तुम वहाँ पे मिसमैच कर गए, दोनों बातों में तुम्हारा मिसमैच कर गया, तो तुमसे वो रगड़ा करने लगेगा कि तुम उस समय तो ये बोले थे, अभी ये बोल रहे हो, उसके बाद तुम फंस जाओगे। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से क्या सीखे हो, व्हाट आर द गुड हैबिट्स यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, व्हाट तुम अपने टीचर से क्या सीखे, फ्रेंड्स के साथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स वाला सेक्शन, वो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन करते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, बहुत ज़्यादा वो फ्रेंड्स के बारे में ये सब पूछेंगे कि तुम 5 ऐसा चीज़ बताओ जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड के बारे में हो, मतलब कि बेस्ट थिंग, गुड थिंग और बैड थिंग करके पूछेंगे। और तुम बताओ कि, और एज जैसे कि तुम बोले कि राम इज योर बेस्ट फ्रेंड, ओके, देन बोलेंगे कि अगर तुम राम हो और देन यू टेल मी दैट व्हाट आर द गुड थिंग एंड बैड थिंग इन राहुल, मीन्स यू, ऐसे करके वो पूरा निकलवा लेंगे तुमसे मुंह से एकदम। देन आफ्टर उसके बाद फैमिली क्वेश्चन टू टेस्ट योर इमोशनल मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए वो फैमिली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि बिटवीन फादर एंड मदर whom do you like most, मीन्स अगर व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के बारे में ये पूछ सकते हैं तुम किनको लाइक करते हो, अगर तुम कुछ अचीव किए जैसे कि रिकमेंड हुए तो whom you will be टेलिंग दैट यू रिकमेंडेड, मीन्स सबसे पहले तुम किसको कॉल करोगे चाहे मैसेज करोगे, वॉट एवर इट इज़। एंड what responsibility do you have as an eldest sibling, अगर तुम बड़ा भाई हो चाहे बहन हो तो तुम what are the your responsibilities, तुम अपने भाइयों बहनों से झगड़ा भी करते हो, ये सब भी पूछ सकते हैं। what qualities can you learn from your sibling, अगर तुम छोटा हो चाहे बड़ा हो तो तुम्हारा भाई बहन है अगर, तो तुम उनसे क्या कुछ अच्छा सीख सकते हो, you will have to tell, और तुम क्या उनको सिखा सकते हो कुछ अच्छा, what best is present in you that you can help him or her to learn। और ये भी पूछ सकते हैं कि who is better, you or your sibling, ये। और मैक्सिमम टाइम लोगों का जवाब हो सकता है कि मैं ही बेस्ट हूँ या चाहे ऐसा कुछ, तो वो ज़रूरी नहीं है, तुम अपने सिबलिंग को भी बेस्ट दिखा सकते हो और
you can tell that to what you can learn from him, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम क्या सीख सकते हो अपने बड़े भाई चाहे बड़े बहन से, छोटे भाई छोटे बहन से। तुम लोगों से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि तुम दोनों बड़े भाई बहन में से मीन्स कि अगर तुमको इफ़ यू आर एल्डर, अगर तुमको छोटा बनने का मौका दिया जाए तो व्हाट विल यू बी हैप्पी, या चाहे बड़ा बनना तुम पसंद करोगे, और वैसा कुछ करके अगर उनको मन नहीं लग रहा है तो मीन्स अगर तुम्हारे बातों से वो पक गए हैं तो ज़रूरी कुछ ना कुछ कचरा करेंगे या तो भगा देंगे, सीधा बात है। लेकिन जनरली वो PY एटलीस्ट इफ़ यू, जब तुम्हारा SSB में इंटरव्यू 35 मिनट तक चला जाए तो तुमको मीन्स मीडियम रेंज में आ जाते हो कि 35-40 मिनट, जो कि अगर ये डिपेंड करता है अलग अलग बोर्ड पे, मतलब कि उसका एवरेज इंटरव्यू का टाइमिंग कितना है। अगर वो 40 से 45 मिनट में बेस्ट बच्चा को भी हटा दे रहे हैं तो 35 इज एवरेज के लिए बेस्ट है। मीन्स अगर तुम एवरेज कैंडिडेट हो तो 35 मिनट इज बेस्ट, वो 35 मिनट में ही तुमको जांच लिए अच्छे से। फ्रेंड्स सर्कल के बारे में वो लोग बहुत खोजते हैं। फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी, नॉट द नंबर, नॉट द क्वांटिटी। तुम्हारा सोशल कंडक्ट कितना कैसा है, तुम्हारा पर्सनल थॉट्स कैसे हैं, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्या है, तुम्हारे सोशल मीडिया पे कितने फ्रेंड्स हैं, एंड हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वो क्यों है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, व्हाट आर द क्वालिटी यू लाइक, व्हाट आर द क्वालिटी यू डू नॉट लाइक, व्हाट आर द क्वालिटी यू वुड लाइक टू चेंज इन हिम। ये सब क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद व्हाट डू यू डिस्कस अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज विद योर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। एंड हाउ एंड वेयर यू स्पेंड टाइम विद देम, मीन्स तुम पढ़ाई के अलावा, क्लास टाइमिंग के अलावा और क्या क्या करते हो, तो बता सकते हो कि तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे कि तुमने ऊपर बोला है कि तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, तो किसके साथ खेलते हो, फ्रेंड्स के साथ। तो स्पोर्ट्स टाइम में तुम 2 घंटा कम से कम उसके साथ 2 घंटा 1 घंटा 40 मिनट यू प्ले विद योर फ्रेंड। हाउ मेनी फ्रेंड यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू वुड लाइक टू अवॉइड, डू यू अवॉइड, मीन्स तुम किस किस टाइप के लोगों से मिलना नहीं पसंद करते हो। एरोगेंट हो सकता है, चाहे सेल्फिश हो सकता है, ये सब कर सकते हो, कह सकते हो। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि तुम अपने फ्रेंड को किस किस टाइम मदद किए हो, मतलब क्या किस किस रूप में मदद किए हो, क्या आप मतलब फ्रेंड को हेल्प किए हो और फ्रेंड ने तुम्हें कब कब हेल्प किया है। तो उसमें ये सब मत बोलो कि एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह, इसके बारे में वो ज़्यादा कंफर्टेबल अगर तुम्हारे साथ हो रहे हैं तब भी मत बताओ, बिकॉज दे ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद यू सो दैट यू कम टेक आउट योर सीक्रेट्स एंड शेयर विद देम। ये बहुत बार हुआ है, जनरली वो NDA वालों के साथ करते हैं। नाउ दे विल टॉक अबाउट द एजुकेशनल पार्ट। दे विल मैक्सिमम, इसमें से जो भी क्वेश्चन मैंने तुमको बताया मैक्सिमम वो रैपिड फायर में चला जाता है। तो दे कैन आस्क यू दैट टेल मी अबाउट योर एजुकेशन फ्रॉम द क्लास 10th ऑनवर्ड। क्लास 10 में बताना है कि तुम किस स्कूल में हो, कितना परसेंटेज है आया था। उसके बाद तुम 11th में साइंस लिए, आर्ट्स लिए, चाहे कॉमर्स लिए, ये भी बताना होगा, क्यों लिए ये भी बताओ। ये सब पूछ देते हैं, इसमें नहीं लिखा होगा, हो सकता है। और उसके बाद तुम्हारा 11th में कितना परसेंटेज आया और किस कॉलेज या स्कूल से तुम अपना कंटिन्यू किए एजुकेशन को। उसके 12th में कितना मार्क्स आया, अगर मार्क्स कम आया है तो क्यों आया है। उसके बाद पूछ सकते हैं अगर तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ग्रेजुएशन के बारे में पूछेंगे कि ग्रेजुएशन में मार्क्स ज़्यादा अगर आ गया तब तो ठीक है, अगर कम आया है मीन्स अगर तुम्हारा ग्राफ डाउन की तरफ जा रहा है, 10th में ज़्यादा है उसके बाद कम है फिर कम है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तुमको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ग्राफ अप है, डाउन है, देन अप है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना कोई भी बहाना इसमें दे सकते हो कि 12th में ऐसा कुछ हुआ था जिस कारण से मेरा परसेंटेज डाउन चल गया, बट आई ट्राइड अगेन एंड हेल्प
डिड द हार्ड वर्क और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लिया अगेन। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तुम क्यों चूज किए बीए, चाहे बीटेक किए, बीएससी कर रहे हो, चाहे और भी कोई बी स्टैट बी मैथ कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्या सोच के चूज किए, परसेंटेज क्यों लो है ये तो बता ही दिए हैं। वाई डिड यू नॉट परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट, अभी अगर तुमने नहीं किया और बी ग्रेजुएशन के बाद तुम 2-3 अटेम्प्ट तक रुके हुए हो और एसएसबी दे रहे हो, तो ये भी पूछ सकते हैं तुम ड्रॉप क्यों ले रहे हो। इवन आफ्टर क्लास 12 इफ़ यू टेक ड्रॉप फॉर द जस्ट ओनली फॉर द एनडीए, तब तो फंस जाओगे। अगर तुम बस एनडीए के लिए ड्रॉप ले रहे हो और तुम्हारा रिटर्न फर्स्ट टाइम से ही क्लियर हो रहा है, तो बहुत दिक्कत का बात है, तुमको परेशान कर देंगे। वॉट तुम्हारा स्कूल टाइम में चाहे कॉलेज टाइम में वॉट वेयर योर फेवरेट सब्जेक्ट और वॉट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को तुम लाइक करते हो, तो उससे सवाल पूछेंगे। फिर उस सब्जेक्ट से अगर मैथ वगैरह बोल दिया तो तुमसे रैपिड में कुछ 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बोलोगे तो वो रगड़ देंगे, और मैक्सिमम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ही बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि मैथ तो किसी को पसंद होता नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री से सवाल वो लोग बहुत पूछते हैं। मीन्स सिंपल ही पूछेंगे, अगर तुमको याद नहीं है तो तुम फंस सकते हो। सो मतलब कि जो भी ओवरव्यू होता है, अगर एनडीए वाले हो तो ओवरव्यू ले लो फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर पढ़ लियो तो तब तो ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट बस एनडीए पे फोकस करते हैं, तो उसको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एनडीए में उस लेवल के गैट में नहीं आता है जिस लेवल का 11th-12th में होता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो वॉट वेयर योर क्लास 11, ये सब तो बता ही दिए। और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम दिए हो आफ्टर क्लास 12, तो इसमें तुमको बता दो जेई नीट जो भी दे रहे हो अपना। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कौन सा एग्ज़ाम दिए, कितना एग्ज़ाम दे चुके हो, और किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो ऑब्वियसली। उसके बाद पूछेंगे कि उसके बाद वर्क प्लेस में अगर कहीं पर काम कर रहे हो तो प्रोफेशनल कैरेक्टर निकालने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पे तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। तो दे मे आस्क यू अबाउट दी 5 गुड एंड बैड क्वालिटीज इन योर बॉस और योर टीचर। मीन्स अगर तुम स्टूडेंट ही हो तो टीचर में पूछेंगे, गुड क्वालिटी ऑब्वियसली पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि तुम किस हु इज़ योर फेवरेट टीचर ऑफ व्हाट सब्जेक्ट, एंड हु इज़ द टीचर, और तुम किस टीचर को लाइक नहीं करते हो और क्यों नहीं करते हो, ये भी पूछेंगे। और तुम्हारे मुंह से वो टीचर का नाम निकलवाएंगे ही, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर कैरेक्टर, हाउ यू जज पीपल, व्हाट वुड यू इम्प्रूव इन योर कंपनी। अगर तुम कंपनी में काम करते हो, किसी एनजीओ वगैरह है, तो कोई एमएनसी है तो उसमें काम कर रहे हो, तो क्या इम्प्रूव करना चाहोगे। अगर वाई डू यू वांट टू लीव करेंट जॉब, अगर जॉब अच्छा है तो वो पूछेंगे क्यों जॉब लीव करना चाहते हो। उसके लिए तुम वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। तुम मीन्स पेट्रोटिज्म दिखाओगे तो ये सब तो सब करते हैं, कुछ अलग अच्छा करना करोगे तो बचोगे। वॉट सैलरी रिसीव करते हो, कैसे स्पेंड करते हो, अगर सैलरी इनकम मिल रहा है तो तुम पेरेंट्स को देते हो कि नहीं देते हो, कितना स्पेंड करते हो खुद पे और कितना पेरेंट्स को देते हैं, कितना सेव करते हो, ये सब पूछ सकते हैं। व्हाट इफ़ योर बॉस डिनाइज लीव फॉर एसएसबी, ये सवाल एक है। वेयर डज योर बॉस नो अबाउट योर एसएसबी, वो जानते हैं कि नहीं जानते, ये सब तुम पूछ सकते हैं वो लोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रैपिड फायर और सारे क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम डिफेंस ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, वाई आर्मी, चाहे वाई एयरफोर्स, चाहे वाई नेवी, ये पूछ सकते हैं, चाहे वाई डिफेंस, और वो तुम्हें सिलेक्ट क्यों करें। देखो मैं तुम्हें नीचे दिखाता हूँ, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, देखो पूछ दिया है। व्हाट इज़ योर फर्स्ट चॉइस एंड वाई, ये ओटीए वाले एसएसपी में हो सकता है। विच फोर्स वुड यू लाइक टू ज्वाइन इफ़ रिकमेंडेड इन ऑल 3, तो तुम जिस फोर्स के लिए एसएसबी देने गए हो उसी के बारे में बोलो। अगर आर्मी से हो तो विच रेजिमेंट वुड यू लाइक टू चूज एंड वाई। उसके रेजिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे कि उसके पास्ट के बारे में, कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है किस किस वॉर में, 5-6 वॉर हुए हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना वगैरह से।
इंडिया से, पाकिस्तान से, चाइना से ये सब वॉर हुआ है, उसके बारे में पूछेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कि कौन कौन कितना उनमें अवार्ड्स मिले हैं किन किन लोगों को। मतलब अगर तुम पहले एसएसबी दे चुके रिपीटर हो तो वो पूछ सकते हैं कि वाई वेयर यू नॉट सिलेक्टेड अर्लियर, वाई डिड यू, और तुमने इस बार क्या अलग किया जो वो तुमको सिलेक्ट करे, वाई शुड आई सेलेक्ट यू। वो बोल सकते हैं कि तुमने ऐसा क्या प्रिपेयर अलग किया है जो कि मैं तुमको सिलेक्ट करूं। एंड इफ़ यू, अगर तुम सिलेक्ट नहीं होते हो तो तुम्हारा अल्टरनेटिव क्या है, मतलब अल्टरनेट ऑप्शन क्या रखे हो अपने करियर के लिए, अल्टरनेट करियर ऑप्शन इफ़ डिफेंस डज नॉट वर्क आउट। ये भी क्वेश्चन है। ये सब रैपिड फायर के बाद जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे ही हैं। इसमें तो मोटिवेशन काम नहीं आता है। मोटिवेशन यू कैन सो 40-30% ऑफ मोटिवेशन, बट तुमको जेन्युइन जवाब देना पड़ेगा। सब मोटिवेशन तो सब दिखाते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। तुम बोलेंगे तुम सिविल में भी जाके देश की सेवा कर सकते हो। अगर डॉक्टर बन रहे हो तो पीपल की सेवा कर सकते हो, जो मरीज हुए वो भी तो देश की सेवा हुआ। अगर आईएएस ऑफिसर वगैरह बनते हो, चाहे बीपीएससी वगैरह, यूपीपीएससीएस और कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम करते हो क्लियर, तो उसमें भी देश की सेवा कर सकते हो इंटरनली। तो वाई डू यू वांट टू कम ऑन फ्रंट, मीन्स कि डिफेंस में क्यों जाना चाहते हो। ये सब बहुत सोच समझ के खुद से तुम सोच सकते हो कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो क्या पूछ सकते हैं इसके अल्टरनेटिव में। इतना 100-200 सवाल के बाद तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। प्रेशर क्वेश्चन बना सकते हैं, डिमांड ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट, व्हाट इज़ द टफेस्ट टास्क यू हैव डन, डिस्क्राइब योर मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट, डू यू अब्यूज, ड्रिंक और स्मोक, when have you felt physically and mentally exhausted, have you ever slapped anyone, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये 5-5 पूछेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है। ये मतलब कि व्हेन आई हैड गिवन एसएसबी वो मुझसे भी पूछे थे। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक, गिव 5 रीजन वाई शुड आई रिकमेंड यू। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस क्वेश्चन। वो जो मैच्योर लोग होते हैं, ग्रेजुएशन एंट्री वाले, चाहे उससे भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो जो कि ऑलरेडी इन सर्विस होते हैं, सर्विस एंट्री वाले, उनसे ये सब पूछ सकते हैं। गिव में 5 रीजन वाई शुड आई रिकमेंड यू। अगर तुम एनडीए वाले हो तब भी प्रिपेयर करके रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि वो उनका मूड कैसा है और वो उस समय जवाब और सवाल के कैसा पूछ रहे हैं, और तुम्हारे जवाब से वो खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सब भी मैटर करता है, मीन कि तुम्हारा जवाब उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब कम मैटर करता है, लेकिन 1-2% तो मैटर कर ही जाता है। अगर तुम रिकमेंड नहीं हुए तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, कंपेयर योर लास्ट एसएसबी विद दिस। तुम जो पास्ट में एसएसबी दिए हो उससे तुम यहाँ पर कैसे अच्छा किए हो ताकि तुम सिलेक्ट हो सको। वो ये भी पूछ सकते हैं अगर कोई इंटरव्यूअर है, जैसे कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि ये लड़का अच्छा है, मतलब कि कहीं से उसको पता चल गया, चाहे कि वो तुम्हारे बारे में जान गए कि परफॉर्मेंस कैसा रहा साइकोलॉजी और जीटीओ में, तो तुमको बोलेंगे कि वो, और उनको लगा कि तुम इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो वो तुमसे पूछ सकते हैं कि रैंक योर जीटीओ टेस्ट एंड साइकोलॉजी टेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 10, गिव मार्क्स आउट ऑफ 10। तो तुम 10 में से कितना रेट करना चाहोगे योर परफॉर्मेंस इन जीटीओ और साइकोलॉजी। एंड वॉट वेयर यू थिंकिंग बिफोर द इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस से पहले क्या सोच रहे थे, ये सब पूछ सकते हैं। ये सब लास्ट सम अप क्वेश्चन है। व्हाट 3 थिंग्स डिड यू लर्न फ्रॉम एसएसबी, ये भी पूछा जा सकता है। ये सब कॉन्फ्रेंस में पूछा जा सकता है। व्हाट हाउ वाज योर फूड एंड स्टे, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ें हैं। हुम विल यू कॉल इफ़ यू गेट रिकमेंडेड, व्हाट क्वेश्चन डिड यू एक्सपेक्ट मी टू आस्क बट आई डिडंट। इसमें 1-2 क्वेश्चन तुम रख सकते हो जो कि तुमको लगा कि पूछना चाहिए था एसएसबी में इंटरव्यू में, मगर वो नहीं पूछे हैं। ये क्वेश्चन जनरली रिकमेंड जो होने वाला रहता है वो सबसे ही पूछा जाता है। ये सारे, ये दोनों क्वेश्चन अगर वो कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं तो। और तुमसे ये भी बोलेंगे कि व्हाट
मीन्स तुमने क्या गलती किया है जिस कारण तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते हो इस एसएसबी में, ताकि वो निकाल सके तुम्हारी गलतियों को, ताकि उसको पता चल सके कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुमको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये सब जनरली होता है तब होता है जब कि तुम ऑलरेडी सिलेक्ट होने वाले रहते हो, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं इंटरव्यू वगैरह में, और तुम कॉन्फ्रेंस में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। और तुमसे इसके अलावा भी और भी सवाल पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू तुम्हारा जो सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, चाहे क्लास 12th में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके डिफेंस में रिलेटेड पूछे जाएंगे, अगर आर्मी लिए हो तो आर्मी के बारे में पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन तुमसे लिया जाएगा। क्या अभी जैसे कि नेवी है तो जो भी आईएनएस वगैरह इंडक्ट हो रहे हैं नए नए, एयरफोर्स है तो और जो भी नया इंडक्शन हो रहा है तीनों चीज़ों में, तीनों फोर्स में, ये सब के बारे में तुम्हारे से पूछा जा सकता है। और और अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुमको लगता है कि इफ़ दिस वीडियो सूट्स, कि लगता है आई हैव मेड समथिंग इन्फॉर्मेटिव एंड तुम यू गॉट एंड हेल्प फ्रॉम मी, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much.